हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है AI फॉर यू। एंड इसमें हम पाकिस्तान में जो बैचलर्स या मास्टर्स या फिर MS और MPhil के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं इन AI, हम उसकी डिस्कशन किया करेंगे। फॉर द स्टार्टिंग वी आर डिस्कसिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन AI जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ आजकल ऑफर कर रही हैं बैचलर्स। एंड आई वांटेड कि हम सबसे पहले AI from GIK को कवर करें। एंड फॉर दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, माई पर्सनल मेंटोर एज वेल, जिन्होंने मुझे गाइड किया वाइल आई वॉज टेकिंग एडमिशन इन GIK। एंड आई वॉन्टेड a detailed answer. He gave me a very detailed answer. मैंने पूरा हफ्ता उनका दिमाग खाया and finally I chose AI for myself and I'm very happy with my decision. So this video is very close to my heart. Why? बिकॉज मैंने बहुत सर्च किया एक ऐसी वीडियो के लिए जिसमें मुझे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मिल जाए और मुझे ये भी बता दिया जाए कि GIK से AI करना अच्छा है या नहीं है, इज़ इट अ गुड चॉइस और नॉट, या मुझे कोई और यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए। मुझे एक वीडियो चाहिए थी बट इट वॉज नेवर ऑन द इंटरनेट, बट फॉर यू it will be now available. So, today our guest is Afraz Tahir, who is pursuing Bachelor's of Artificial Intelligence from GIK. He's our senior. He's a very aspiring person, and he is also providing his services as an online tutor to international students, and he's an artificial intelligence developer as well. So, please welcome. Assalamu alaikum, Afraz bhai. Walaikum assalam. How are you? I'm Alhamdulillah very well and very happy today to have you here. Thank you so much for saying yes to this video, and I'm hoping कि ये video बहुत से juniors को help करने वाली है. How are you today? First of all, to be honest, the honor is mine. Introduction, my name is Afraz Tahir. I am the third year student in Bachelor's of Artificial Intelligence, Bachelor's in Science. Or I am the first batch of Artificial Intelligence in GIK. Or I have heard that we were the second batch of AI in Pakistan. So like it's pretty new अभी पाकिस्तान के अंदर. Okay, so I know हर किसी को पता है what is AI and everybody has their own definition of AI. But just for the starter, before we move on to AI from GIK specifically, I would like you to tell K what is AI basically. Nowadays, ChatGPT is something that has evolved artificial intelligence, or it has made artificial intelligence the mainstream, the most talked about topic in the world actually. So a lot of people are now getting aware of this term or this field. तो इसमें यह है कि अभी भी कुछ लोग मिसगाइडेड हैं और वो उनको ये लगता है कि AI is going to take over and stuff like that. No, just जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं नॉर्मल, वही ये चीज़ है कि जी आप प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर को टू मेक डिसीजंस ऑन इटसेल्फ, ठीक है, और वो भी गाइडेड डिसीजंस होते हैं इन द सेंस कि आप उसको एक डेटा प्रोवाइड करते हैं, आप कहते हैं कि ये डेटा है, या तो आप उसको पैटर्न्स प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ जी ये पैटर्न है इस डेटा के अंदर, आपने इस पैटर्न के मुताबिक हमें डिसीजन देना है, ठीक है, नहीं तो आप उसको कहते हैं कि आप पैटर्न खुद ही निकालें और उस पैटर्न के मुताबिक आप हमें एक डिसीजन दें. तो दैट्स ऑल अबाउट AI, ठीक है, और AI कैन एक्चुअली हेल्प अस इन आवर प्रोडक्टिविटी in the sense के a lot of the things that we do, they can become much faster using AI's help. So I guess that will be the simplistic definition of AI. Precisely. Okay, so bachelor's in AI from GIK is partnered by Huawei. What is all this hype? Acha, the thing is that I would not really comment too much on this क्योंकि as in मैं first batch हूँ और अभी भी मैं third year में हूँ, ठीक है, and the promises that they made were कि third year से आपका एक एग्जाम स्टार्ट होगा या आपकी लैब्स होंगी Huawei की जो कि आगे Huawei की कंपनी को जाएंगी and stuff like that. तो the thing is कि Huawei की तरफ से जो हमें systems का हुआ था कि आपको systems और आप proper labs आपकी AI labs बनेंगी, they are there. मतलब हमारे लिए तो इन्होंने बिल्कुल थर्ड ईयर में आके बनाया, लेकिन फॉर द स्टूडेंट्स दैट आर जस्ट ज्वाइनिंग GIK एंड स्पेशली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट विल बी देयर,
ठीक है। तो ऑफ कोर्स अ फील्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो उसको एक डेवलप करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो हमारे टाइम में वो डेवलप हो रहा था, और जो लोग अभी नए आएंगे, इट हैज matured to some sense, but the whole Huawei thing, I wouldn't say कि it's a completely good thing कि आपको वो वाकई कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, या मैं इसको बैड थिंग में भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। Huawei का अभी भी एक रिप्रेजेंटेटिव आया था फ्रॉम चाइना एक्चुअली इन आवर करियर फेयर, तो ही वॉज प्रेजेंट देयर, और हमें इसका बाद में पता लगा था एक्चुअली, लेकिन ही वॉज देयर, ही विजिटेड GIK, सो इट्स काइंड ऑफ देयर, द पार्टनरशिप इज देयर, बट द होल थिंग के क्या वो प्रोसेस है, कितना डायरेक्ट है आपके साथ, और कितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी, और कितनी हेल्प हो रही है उसकी, वो काफी स्लो है, और वो काफी लाइक आई वुड से कि अभी तक हम उसमें कंफ्यूज हैं कि वेयर इज द पार्टनरशिप विद हुआवे ना। तो लाइक अभी हमारी एक लैब कंडक्ट हो रही है, हुआवे लैब हम उसको कहते हैं, उसके अंदर हमारा जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का जितने भी कोर्सेज हमने किए थे पिछले सेमेस्टर में, वो सारे रिपीट हो रहे हैं, और उसको हम लोग हुआवे के लिए किस तरह से करना है और उनके टूल्स को किस तरह से यूज करके करना है उसको सीख रहे हैं, लेकिन वी डोंट रियली नो अबाउट द होल सर्टिफिकेट थिंग या जो भी है आगे। मतलब द वर्क इज गोइंग ऑन, कभी ना कभी या इस हमारे बैच में या अगले बैच में प्रॉपर पार्टनरशिप इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली यही सीन है कि अभी जाहिर बात है एक चीज डेवलप हो रही है, आप एक नई फील्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा होती है। एज आई सेड के पाकिस्तान के अंदर हमारा सेकंड बैच है, एंड कीपिंग दैट इन माइंड इट्स अ कम्प्लीटली न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, और खासतौर पर अगर हम इस चीज को देखें कि आर एजुकेशन सिस्टम खासतौर पर यूनिवर्सिटीज का इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय HEC, ठीक है। तो दे आर द पीपल हु आर डिसाइडिंग अपॉन दी कोर्सेज, और क्या आपने पढ़ना है उसके अंदर, ठीक है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो उनके सामने भी एक नई चीज है, जाहिर बात है, तो उनको भी इस चीज में डिसाइड करना कि हाँ जी क्या क्या इनको पढ़ना चाहिए, और कोई गाइडेंस बाहर से मिलना, वो भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो वो जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, एंड अप टिल नाउ आई वुडंट से कि मतलब हमने कुछ सीखा नहीं है, वी हैव लर्नड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड आई वुड से इट्स ऑलवेज द केस इन एनीथिंग। डेफिनेटली। इसके अलावा मुझे याद पड़ता है कि हर साल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं हुआवे के, एंड दे ब्रिंग गुडीज एंड स्टाफ, जिसकी डायरीज और पेन्स अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं जो बैच नया आता है। इसके अलावा आई थिंक देयर वाज समथिंग अबाउट कि सर्टिफिकेशन होती है हुआवे की, जो कि आई गेस 300,000 या $300 की एक सर्टिफिकेशन होती है, एंड वी आर गिवन 2 ट्रायल्स फॉर फ्री उस सर्टिफिकेशन के लिए। Would you comment on that? अब द थिंग इज के हुआवे ICT अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जो हुआवे की कंपनीज यहाँ पाकिस्तान में काम करी हैं, दे आर मोस्टली टेलीकम्युनिकेशंस रिलेटेड कंपनीज, जिसमें आपका नेटवर्किंग का काम होता है और स्टफ लाइक दैट। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एक बंदा IT या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, मेरा अपना कजन था एक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी हाईटेक से उसने, तो वो ही एक्चुअली ज्वाइंड हुआवे, एंड ही वाज इन नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशंस इनके फील्ड में। तो ही वाज मैनेजिंग स्टफ लाइक ये टावर्स वगैरह जो आपके होते हैं, और ये सारा कुछ जो इनका इक्विपमेंट होती है, सारा कुछ मैनेज कर रहा था वो। द थिंग इज के यहाँ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हुआवे की तरफ से कोई ब्रांच हो, दैट आई एम नॉट कंफर्म। और जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रही हैं, वी नेवर हर्ड के जी $300 की या 300,000 की वो एक सर्टिफिकेशन होती है, समथिंग लाइक दैट। वी वर जस्ट टोल्ड कि हाँ जी, ये 2 दफ़ा ट्राई आपकी होगी, आप हुआवे की सर्टिफिकेशन के लिए एक पेपर देंगे जिसमें से आपके नंबर्स आएंगे, और फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उन टॉप 10 स्टूडेंट्स को या टॉप 15 को या सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और टॉप 10 या टॉप 5 को इंटर्नशिप ऑफर होगी। Keeping this point in view कि अभी AI पे experimentations चल रही हैं, not only in GIK but in all universities of Pakistan जो AI offer कर रही हैं in bachelors, would you prefer AI over CS, CE? अच्छा, the thing is कि this is something that we need to keep in mind कि AI is now becoming a very prevalent field in the world, to be honest. आप किसी भी उसमें चले जाएं, फील्ड में चले जाएं, ठीक है, मे इट बी फार्मिंग, मे इट बी हैविंग केमिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनीथिंग, इट्स एवरीवेयर।
तो इफ यू वांट टू स्टे रेलिवेंट, वी आर लकी इन द सेंस कि हम लोग, इफ यू वांट टू स्टे रेलिवेंट, वी आर लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स. एंड प्रीटी सून विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग ये देखेंगे कि soon artificial intelligence will take over the people who are working at a very base level. लाइक ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और ये आपके जो क्या नाम है जूनियर डेवलपर्स हैं, इट माइट टेक ओवर. ठीक है, उससे अभी डरना नहीं है कि इट विल टेक ओवर, बट इट विल मेक इट सो कि आपका जो कंपनीज हैं दे विल मोर लाइकली हायर लेस पीपल फॉर दोज जॉब्स, क्योंकि उनको सिर्फ थोड़े बहुत बंदे चाहिए होंगे उनके मुताबिक काम करने के लिए. द रेस्ट ऑफ द हेल्प दे विल टेक फ्रॉम एआई. ठीक है, तो इट्स आई वुड रादर सजेस्ट कि आप एआई में जाएं, क्योंकि एआई में एटलीस्ट सीएस के सारे कोर्सेज हैं. ठीक है, हाँ सीई के नहीं है. अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग आई वुड से ये दोनों चीजें सीएस और सीई यहाँ पे करती हैं डिफर. ठीक है, अब ये आपके कंप्लीटली पैशन पे या आपके मतलब क्या कौन सी फील्ड आपकी फेवरेट है, क्या आप करना चाहते हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप हार्डवेयर साइड पे इंटरेस्टेड हैं कि हाँ जी कंप्यूटर की बनावट कैसे होती है. ठीक है, व्हाट इज रैम, हाउ इज इट मेड, या व्हाट इज अ हार्ड डिस्क, स्टफ लाइक दैट. ठीक है, और सीपीयू में क्या फंक्शंस हो रहे होते हैं, आपका डाटा कैसे प्रोसेस होता है एक कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, एंड यू वांट टू मेक चेंजेस टू इट, या यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक अ कंप्यूटर हार्डवेयर वाइज. ठीक है, तो आई वुड से कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाएं, दे विल टीच यू अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट दैट. ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर साइड पे रहना है, देन यू कम इनटू सीएस. आई वुड से कि यू शुड गो इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि सीएस इज मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली रिलेटेड टू सीएस. उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग से करनी पड़ेगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज अ प्लस फैक्टर कि आपको सीएस के कोर्सेज भी हो जाते हैं उसके अंदर, और जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी हो जाती है. देयर आर सम कोर्सेज जो सीएस वाले अलग से पढ़ते हैं. ऑटोमेटा था उनका, वो अलग से उन्होंने पढ़ा था, and that's how they are different. But I would say that artificial intelligence is the field to opt for if you're interested in it. Again, then there's the thing कि आप interested किस चीज़ के अंदर हैं, you need to be very careful on that. ठीक है, और आपको अपना interest वो करना चाहिए, एक तरह से explore करना चाहिए. You should actually research कि आपका interest क्या है और उसके अंदर क्या क्या मतलब advances हो रहे हैं दुनिया के अंदर, and how can you contribute to that. टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी कि मुझे इतना ज़्यादा, आई वॉजेंट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इन एफएससी, आई डिड प्री इंजीनियरिंग. और जब एआई ने धचके देना शुरू किए इन लाइक फर्स्ट ईयर का एंड फाइनल्स पे, आई हैड अ ब्रेक डाउन. मैं सर राजा के पास गई, बैच एडवाइज़र, एंड आई वॉज लाइक सर दिस वॉजेंट व्हाट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं तो रॉबोट्स बनाने थे, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ. सो उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी एक बात की, वेरी प्रिसाइज, एंड इट इज़ इट स्टिल स्टेज विद मी. ही सेड देखें जो एआई है ना, जो हम डिग्री करवा रहे हैं एआई की, दैट इज़ एक्चुअली कि हम रोबोट का दिमाग बना रहे हैं, हम मशीन का दिमाग बना रहे हैं. इट्स ऑल सॉफ्टवेयर, देयर इज़ नो हार्डवेयर इन्वॉल्व. देयर इज़ लिटिल हार्डवेयर, हम कोल के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बट वो इतना इन डेप्थ नहीं होते. सो ये जो जूनियर्स देख रहे हैं वो ज़रूर ये माइंड में बात रखें कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एआई, इट इज़ मोस्टली सॉफ्टवेयर, एंड इफ़ यू वांट टू गो हार्डवेयर की साइड पे, उसमें सीई में जाएं, और फिर बाद में यू कैन स्पेशलाइज इन एआई. वुड यू एग्री टू दैट? यस, आई कम्प्लीटली एग्री टू दैट, क्योंकि आपका एआई जो है, अगर आप मास्टर्स, काफ़ी लोग इसलिए करते हैं कि सीई के अंदर वो होते हैं बैचलर्स के अंदर, और एआई के अंदर वो फिर मास्टर्स कर लेते हैं, एंड दे आर एक्चुअली नाउ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ एआई इन हार्डवेयर. हार्डवेयर के अंदर भी आपका काफ़ी एआई का यूज़ होता है, एंड दे आर डेवलपिंग चिप्स जो आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उनको मोर एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकें. ठीक है, It's an emerging field, right? एग्जैक्टली, इट्स एन इमर्जिंग फील्ड. हर चीज़ के अंदर इसकी एक्सप्लोरेशन हो रही है, हर चीज़ के अंदर इसकी रिसर्च हो रही है. हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिसर्च पेपर उठ के आ रहा है कि हाँ जी ये आज मैंने ये किया, ये आज मैंने ये किया, ये आज मैंने ये किया. आप रोज़ाना के हिसाब से देख सकते हैं कि हाँ जी कितनी रिसर्च इसके अंदर हो रही है, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर हो रही है. अगेन द थिंग इज द लिमिट इज ओनली यू. ठीक है, आपको खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको खुद को देखना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल,
और व्हाट आई बिलीव कि लिमिटेशंस आपकी नहीं होती, यू जस्ट पुट इट ऑन योर सेल्फ। लेकिन चलो ठीक है, अगर आप वो उन लिमिटेशंस के अंडर या उन लिमिटेशंस के साथ की वजह से काम नहीं कर सकते, देन इट्स कम्प्लीटली ओके, यू कैन एक्सप्लोर अदर थिंग्स। ठीक है, अब मैं अगर बताऊं CS के अंदर काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, दे एक्चुअली गो इनटू मार्केटिंग, ठीक है, दे गो इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, दे गो इनटू HR, ठीक है, दे गो इनटू अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड देन CS। आगे आपका करियर क्या है, आपका करियर के अंदर क्या इंटरेस्ट बनता है, वो आपको नहीं पता। दैट्स द थिंग कि GIK का ये एक मैंने अच्छी चीज देखी कि यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ यूजिंग GIK एज अ प्लेटफॉर्म कि हाँ जी इसके अंदर डिफरेंट चीजें हो रही हैं। इसके अंदर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी स्टफ है और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो स्टफ नहीं है वो भी हो रहा है। Okay, so picking up from this conversation, I would say कि ये जो आपका चूज़ करने का होता है ना, जब आपने एडमिशन लेना होता है फ्रॉम योर FSC या A levels to your undergraduate, that's a turning point for many people. At least it was for me कि आपने अपना पूरा एक करियर पाथ सेलेक्ट करना है। Obviously you can always switch after your bachelor's, आप अपने मास्टर्स में डिफरेंट डिग्री ले सकते हैं, बट मेरा हमेशा से माइंड सेट रहा है कि why not choose one line in अंडरग्रेजुएट एंड स्टिक टू इट। बिकॉज जैसे आपने भी बात की ना कि स्कोप इंसान का अपना होता है, आपकी फील्ड का नहीं होता। तो जितना आप उस फील्ड में स्टार्ट से आ जाते हैं, जितना आप उस फील्ड में गुजारते हैं अपना टाइम, उतने आप उसमें पक्के हो जाते हैं, उतने आप मास्टर हो जाते हैं और फिर आपके लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द माइंड सेट जो कि स्टूडेंट्स का होता है while they are taking admission, while they are selecting their preferences and stuff. यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो आपके दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, एक तो ये है कि आपने एक्सप्लोर किया हुआ है ऑलरेडी चीज़ को और आप उसके अंदर थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज भी रखते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको। लेट्स से हम लोग अगर CS में जा रहे हैं तो दोज पीपल विल एक्सेल मोर जिन्होंने प्रोग्रामिंग ऑलरेडी की हुई है, ठीक है, और वो उस नॉलेज के साथ आ रहे हैं एंड दे आर द टॉप टियर। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में भी यही रहा कि मेरे क्लास में जो भी लोग प्रोग्रामिंग करके आए हुए थे, दे आर द टॉप टियर इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अदरवाइज मी आई वॉज एक्सप्लोरिंग स्टफ, ठीक है, एट दैट टाइम। तो चूंकि मैं कंप्यूटर्स में अच्छा था और क्या नाम है, गेमिंग वगैरह का शौक था, मुझे कंप्यूटर्स का शौक था, आई पिक्ड इट अप। ठीक है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल ही कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट नहीं होता और वो घुस जाते हैं इस फील्ड के अंदर, तो उनको मसला होता है। देन फॉर देम व्हाट आई वुड से कि अगर आप एक चीज के अंदर घुसने लगे, टेक सम टाइम ऑफ, ठीक है, टाइम ऑफ ले लें आप बेशक, ठीक है, एंड काइंड ऑफ टेक दैट टाइम टू डिसाइड कि आपने करना क्या है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में, ठीक है, पेरेंट्स किस चीज को पुश कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में, एंड एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, ठीक है, और पेरेंट्स के इंटरेस्ट को भी एक्सप्लोर करें। फाइंड आउट विच इज मोर प्रॉफिटेबल, फाइंड आउट विच इज मोर इजी फॉर यू। जैसे आपने अभी करिकुलम की बात की थी, करिकुलम भी उसका देखें कि उसके अंदर कोर्सेज क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या है। अब जैसे मैं हूं, बगैर देखे घुस गया, ठीक है, बगैर देखे घुसा, तो मैं ये कहूंगा कि अभी फास्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इट्स अ लॉट बेटर देन GIK फर्स्ट बैच, क्योंकि उनका पहला बैच गुजर चुका था। ठीक है, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मोर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, उनका मतलब एक ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो काफी कंपेटिटिव है, जिसके अंदर वो काफी पुश करते हैं, उनको ग्रेड्स काफी कम आते हैं उन बच्चों के, एब्सोल्यूट मार्किंग है उनकी। ठीक है, तो उसके अंदर वो बहुत मार्क आते हैं, लेकिन द थिंग इज के दे आर फिर हार्डन्ड इस वजह से। ठीक है, एकेडमिक साइड पे वो बहुत हार्डन्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ चीज को, तो वाइल यू आर स्टडीइंग यू आर एक्सप्लोरिंग, देन इट माइट हैपन कि हाँ जी आपको ये लगे कि हाँ जी ये फील्ड जो थी ना ये मेरे इंटरेस्ट की थी, तो मुझे इसमें चला जाना चाहिए था और ये मैं कर सकता था। अगेन आप जिस फील्ड में हैं उसको लेके रिग्रेट ना करें, गिव इट योर ऑल। लिमिट आप रखते हैं ना एक चीज के ऊपर, इंटरेस्ट आपने डेवलप करना है, इंटरेस्ट आप डेवलप करेंगे हो जाएगा। मेरा भी इंटरेस्ट पढ़ाई के अंदर उस तरह से नहीं था, पहले 2 सेमेस्टर्स मेरे बहुत बुरे गए थे, लेकिन उसके बाद आई हैड टू एक्चुअली बिकम सीरियस। आई वाज लाइक भाई इन्वेस्टमेंट हो रही है एक चीज के अंदर और आप एक डिसीजन ले चुके हैं, तो आपने इसको एक्सप्लोर भी करना है और उसके अंदर इंटरेस्ट भी खुद ही डेवलप करना है। तो वो चीज आपको खुद करनी पड़ती है फिर। ठीक है, वो आपको प्रोफेसर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, वो उसकी गलती नहीं है, वो अपनी जॉब करने आया, वो अपना लेक्चर देगा और खत्म, उसका काम खत्म। ठीक है, उसका काम ये नहीं है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप करवाए, उसका काम ये नहीं है कि आपको एक्सपर्टीज दिलवाए, दैट्स ऑल ऑन यू। तो ये माइंडसेट आपको एक रखना चाहिए कि या तो आपने एक्सप्लोर किया हो,
तो आप आ जाओ, ठीक है, घुस जाओ, आप एक्सेल करोगे। नहीं तो टेक सम टाइम ऑफ, एक्सप्लोर दैट थिंग, एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शंस, और उसके बाद आप चूज करें कि हाँ जी आपके लिए क्या अच्छा है। Basically, when you're talking about taking time off, that means a gap year, right? Some people यस, cannot afford it. एग्जैक्टली, I गैप think some ईयर। people, in my case, अच्छा, I couldn't afford it. हाँ, यहाँ पे मैं आपको अगर कहूँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका, अब जैसे नेस्ट है, ठीक है, दे टेक 3 टेस्ट पर ईयर, ठीक है, और लाजमी नहीं है कि आपका पहले टेस्ट में हो जाए एक चीज के अंदर। जीआईके जो है वो ईयरली लेता है, फास्ट ईयरली लेता है, तो आप इस तरह से एक चीज को रख सकते हैं कि हाँ जी नेस्ट में आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, नेस्ट में अप्लाई किया, लाजमी नहीं है कि पहली दफा में आपका होगा, लेकिन एक और चीज भी है कि आपके एडमिशन टेस्ट उस वक्त तक नहीं खुलते जब तक आपका रिजल्ट फाइनलाइज होकर निकल नहीं आता, या एटलीस्ट रिजल्ट की डेट्स करीब नहीं होती। एंड आई वुडंट से कि हाँ जी आपको पूरा साल चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए एक चीज को, ठीक है, इट डजंट टेक अ होल ईयर, इट विल हार्डली टेक अ मंथ। अगर आप उसको रेगुलरली पर डे अगर घंटा या 2 घंटे भी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको उस चीज को एक्सप्लोर करने में, उस चीज के ट्रेंड के साथ मैच करने में, अप टू डेट रहने में आपको महीने से ज्यादा नहीं लगना, एंड दैट्स ऑल यू नीड, ठीक है। वो आपके जो समर वेकेशंस आप एक तरह से समझ लें, आपके रिजल्ट और आपके एग्जाम्स के दरमियान जो समर वेकेशंस और या वेकेशंस हैं, जो छुट्टियां हैं, उसमें आप एक्सप्लोर करें उस चीज को, आपको पता लग जाएगा, काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आप किस चीज के अंदर घुसने लगे। फिर आपके जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर पूरा करिकुलम के कोर्सेज पड़े होते हैं कि हाँ जी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाएंगे, ये क्रेडिट आवर्स हैं, ये चीजें होंगी, ये लैब्स हैं, वो सारे कोर्सेज आपको समझ आ जाते हैं। उन कोर्सेज का मतलब नहीं पता, उन कोर्सेज में क्या होता है वो नहीं पता, यूट्यूब पे जाओ, कोर्स का नाम लिखो, पहली 2-3 वीडियोस आपने देख ली और उसके अंदर आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली वो इंट्रोडक्शन में वो बता देते हैं कि हाँ जी ये चीज होती है, ठीक है। तो एक्सप्लोर करें, खुद करें, लेकिन उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। आप ये नहीं कह सकते कि आपको पूरा गैप ईयर की जरूरत है। गैप ईयर आप तब लें व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग यूनिवर्सिटीज, मतलब आप कहते हैं कि हाँ जी मुझे अभी यूनिवर्सिटी फाइनल नहीं है कि मैंने बाहर जाना है या मैंने इसी पाकिस्तान में पढ़ना है, दैट आई वुड से कि आप फिर एक ईयर लें डिसीजन मेकिंग का, एक्सप्लोर करें बाहर की यूनिवर्सिटीज को भी और पाकिस्तान की भी। नहीं तो आपको सब्जेक्ट या कोर्स या फील्ड डिटरमिन करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। It is very difficult to do than हम जो बात करें, because we have been through this process. But I think I would really say, and correct me if I'm wrong, कि अगर तो आपको ये 3 महीने का जो हमारे पास गैप होता है बिटवीन एडमिशन्स एंड बिटवीन योर रिजल्ट, अगर उसमें भी नहीं समझ आ रहा, बिकॉज दैट हैपेंड विद मी एज वेल, आई न्यू आई कुड डू एनीथिंग आई गेट इनटू, ठीक है, टेक्निकल में चली जाऊँ, नॉन टेक्निकल में चली जाऊँ, मतलब रगड़ा खा के कर लेता है, मतलब हर इंसान को अपना पता होता है। बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट, वो ये होगा कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, बिल्कुल भी, यू हैव डन योर रिसर्च, यू हैव टॉक्ड टू योर सीनियर्स, आपने करिकुलम भी देख लिया यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं, या आपने 3 फॉर एग्जांपल आपने 3 ऑप्शंस निकाल लिए हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यू शुड पिक द वन दैट इज़ ट्रेंडिंग। बिकॉज अगर आपने अपने माइंड सेट आपका अगर ये है ना कि यार आगे जाके देख लेंगे, अगर ना पसंद आया विल स्विच फील्ड्स, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। सो आई थिंक यू शुड पिक अप द मोस्ट ट्रेंडी वन। उसमें व्हेन यू एंटर द फील्ड यू एक्सप्लोर, यू हैव द टाइम टू एक्सप्लोर, बिकॉज आपकी जो ड्रीम है दैट इज़ नॉट ऑन स्टेक। अगर एक बंदे की एक पर्टिकुलर ड्रीम होती है, एक पैशन होता है, उसी में एडमिशन लेता है, फिर वो स्टेक पे नहीं होता, फिर वो इसी माइंड सेट के साथ यूनिवर्सिटी एंटर होता है कि आई एम हेयर टू एक्सप्लोर, मैं अपनी डिग्री भी अच्छे से करूँगा जो मैंने चूज़ कर ली है फाइनली, एंड साथ साथ आई विल एक्सप्लोर एंड आई विल चेंज माई फील्ड इन मास्टर्स और हायर स्टडीज। वुड यू अग्री टू दैट? अच्छा, इसमें फर्स्ट थिंग दैट यू सेड के सीनियर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट यू डिड। यू एक्चुअली कॉन्टैक्टेड मी व्हाइल योर एडमिशन वाज गोइंग ऑन, मुझे याद है, एंड आई गाइडेड यू थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर आपको आइडिया भी हुआ था कि हाँ जी क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या सीन है, ठीक है। दैट्स एक्चुअली गुड कि आपको एक मतलब कह सकते हैं ना कि शॉर्ट कोर्स चाहिए एक चीज के लिए, ठीक है, वो आपको एक सीनियर प्रोवाइड कर सकता है, वो आपको एक वो बंदा प्रोवाइड कर सकता है जो ऑलरेडी उसके अंदर एक्सपीरियंस उसके थ्रू गुजर रहा है, ठीक है ना। तो वो आपको एक छोटा सा लमसम पकड़ा देगा कि हाँ जी ये सीन है और आपको इस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक्चुअली वीडियोस
for some legal issues yet something like that, videos might not be able to guide you that much. ठीक है, या आप किसी मतलब जाहिर बात है यूनिवर्सिटी की पब्लिक डेफेमेशन तो कर ही नहीं सकते, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स. बट व्हेन यू आर पर्सनली टॉकिंग टू समवन, ठीक है, तो आप उसके साथ जितना ऑनेस्ट होना चाहते हैं हो सकते हैं. ठीक है, तो गेट सम कॉन्टैक्ट्स आउट ऑफ योर यूनिवर्सिटी. आप फेसबुक ग्रुप्स पे जा सकते हो, आप डिफरेंट लोगों से पूछ सकते हो, काफी लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो आपको बकायदा एक इस तरह के बंदे का कॉन्टैक्ट दे देंगे जिसका वो जो ऑलरेडी उस चीज से गुजर रहा है. ठीक है, वो आपको एक काफी अनकट क्लियर वर्जन बता देगा कि हाँ जी ये सीन है. ठीक है, उसके बाद ये बात आ जाती है, आपने कहा था कि ट्रेंडिंग भी अगर हम देख लें तो उसमें आप मैं ये कहूंगा कि कई सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आपको लीवे है कि हाँ जी आप इस फील्ड के साथ कुछ और भी कर सकते हैं. अब मैं मैकेनिकल पे चला जाऊं तो मैकेनिकल में मैं ये कहूंगा कि हाँ जी मैकेनिकल से ही रिलेटेड रहना पड़ेगा मुझे पूरे अपने लाइफ टाइम. इफ आई हैव टू स्विच, आई हैव टू स्विच कंप्लीटली फ्रॉम मैकेनिकल. ठीक है ना, आई डोंट हैव मच ऑप्शंस. अब आई एम नॉट रियली वेल वर्स्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड, तो मतलब इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग डोंट माइंड इट. ठीक है, लेकिन व्हाट आई इन माय ओपिनियन, हाँ मैं देखो मैनेजमेंट वाली साइड पे तो मैं ये कहूंगा कि हर फील्ड का बना जा सकता है. उसमें तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स और आप किस तरह से वर्ल्ड हैंडलिंग आपकी क्या है और आप किस तरह से एक चीज को सेल कर सकते हैं समथिंग लाइक दैट, वो आ जाता है. ठीक है, और वो ज्यादातर आपका एक्सपीरियंस आपकी फील्ड से भी नहीं आता. आप मतलब अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं JIK में, मैं कहूंगा कि इट्स एक्चुअली अ लॉट बेटर इन दैट सेंस, क्योंकि सोसाइटीज और टीम्स हैं अंदर, उसके सारे पूरे डिपार्टमेंट्स हैं. ये जी सेल्स का डिपार्टमेंट है, ये वो उसका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ये HR डिपार्टमेंट है, ये टीम का हेड है, ये सोसाइटी का हेड है, स्टफ लाइक दैट. तो उसमें आपको काफी एक्सपीरियंस हो जाता है. तो फील्ड आप जिसमें भी हो, मैनेजमेंट साइड पे आप जा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है. हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरे उस बंदे के बराबर कंपटीशन आप उस बंदे को दे सकते जिसने उस चीज में बकायदा बैचलर्स किया हो या मास्टर्स किया हो. नो, दैट्स नॉट द केस. हाँ, आप अच्छे हैं, आप कंपनीज रख सकती हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है. लेकिन अगेन जैसा आपने कहा, मैकेनिकल से आप इलेक्ट्रिकल में फटाफट स्विच नहीं कर सकते, मैकेनिकल से आप कंप्यूटर साइंस में फटाफट स्विच नहीं कर सकते. What I like about computer science is that there are so many fields. साइबर सिक्योरिटी है, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर उसके बाद सिंपल साइंस आ गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस आ गया. अच्छी खासी फील्ड्स हैं, सिंपल भी हैं और मुश्किल भी हैं. आपने सिंपल में घुसना है, आप सिंपल में बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं. 3-4 साल आप दें उस चीज को, या चलो 2 साल भी आप अपने मेहनत से काम करें. सर्टिफिकेट्स पढ़े हुए हैं, आगे कोर्सेज पढ़े हुए हैं इस तरह के जो आपको सर्टिफिकेट्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स ऑफर कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर देते हैं. ठीक है, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है, आपके प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो जाते हैं. आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो प्रोजेक्ट्स पे बेस्ड होता है. आपको जूनियर डेवलपर की पोजीशन कहीं पे भी मिल सकती है, आप फ्रीलांस कर सकते हैं. फ्रीलांस इज अ वेरी वास्ट. ये लीवे, एग्जैक्टली लीवे आपके पास कुछ फील्ड्स ऐसी प्रोवाइड करती हैं. मैनेजमेंट ऐसी फील्ड है, मैं कंप्यूटर साइंस को ऐसी फील्ड समझता हूं और मैनेजमेंट को ऐसी फील्ड समझता हूं कि जिसके अंदर लीवे है आपके अंदर, कि आप लाजमी नहीं है कि वो जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसी के अंदर आपने जाना है. आप किसी और चीज में घुस सकते हैं, वो जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो उसके अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जितनी आपकी नॉलेज है. एस्टैब्लिश फील्ड्स जो है ना, जितनी, जैसे मैकेनिकल है बहुत पुरानी चलती आ रही है, इलेक्ट्रिकल है बहुत पुरानी चलती आ रही है. ठीक है, आपका जो ये है सिविल इंजीनियरिंग है, स्टफ लाइक दैट. इसमें यह है कि यू आर कंप्लीटली डीलिंग विद समथिंग एल्स. यू आर डीलिंग विद फिजिकल थिंग्स और थिंग्स दैट आर नॉट दैट मच ट्रेंडी. जरूरत है, हर फील्ड की जरूरत है. फील्ड की जरूरत ना होती तो आपको पढ़ाती भी ना. जरूरत है, लेकिन यू गेट इन टू इट अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत ज्यादा उसके अंदर वो हो, आपको शौक हो, उसका इंटरेस्ट है अगर आपका, तब आप घुसे हैं उसके अंदर. मैकेनिकल का आपको पता है शुरू से शौक है, आपने गाड़ियां वगैरह खोली हुई हैं, आपने चीजें देखी हुई हैं कि हाँ जी मैकेनिक्स किस तरह से काम करती है, आप वीडियोस देखते हो गाड़ियों की और ये सारी चीजें. हमारे जो टीम हैमरेट है उसके अंदर मैकेनिकल टीम भी है, इलेक्ट्रिकल आप हो उसका पार्ट बल्कि, और उसके अंदर यही है, मैकेनिकल की टीम है अलग से और इलेक्ट्रिकल की टीम है. मैकेनिकल के अंदर वो लोग घुसते हैं जिनका प्रॉपर इंटरेस्ट है, गाड़ियों के अंदर मैकेनिक्स का इंटरेस्ट है उनका, और वो उस चीज को बनाते हैं, कंपटीशन को विन भी करते हैं और लेके आते हैं कंपटीशन को. ठीक है ना, तो मतलब यही है कि आपका इंटरेस्ट अगर है तब आप घुसें.
नहीं तो आप अगर एक्सप्लोर करें, फाइंड समथिंग जो आपको इतना लीव वे प्रोवाइड करती है कि आप मतलब किसी भी चीज में घुस जाएंगे, आपका गुजारा हो जाएगा। बिकॉज दिस इज योर प्रैक्टिकल लाइफ ना, ठीक है। आप ये 4 साल गुजारेंगे, 4 साल के बाद आपने एक प्रैक्टिकल लाइफ में अपने घुसना है, जिसके अंदर आपने अपने आप को फीड तो करना ही करना है। आप फैमिली को सपोर्ट करें ना करें, आपने अपने पैरों पे खड़ा होना है, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। सारी बात है कि आप किधर से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फंस जाएंगे, देन इट माइट बी रिग्रेटफुल फॉर यू, ठीक है। दैट्स नॉट अ लाइफ दैट यू वांट। तो एक्सप्लोरेशन इन टाइम, और मतलब आप एक डेडिकेट कर दें टाइम, अपना सीरियस टाइम डेडिकेट कर दें इस चीज को कि आप एक्सप्लोर करें। इट विल हेल्प यू आउट इमेंसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Definitely. So with this, I think we should end the video. This was very informative, and I think कि अगर ये वीडियो मुझे पहले मिल जाती तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन अच्छा हुआ कि आप मुझे पहले communicate हो गया, and you guided me immensely throughout my admission journey. So thank you so much, Afraz bhai. Thank you so much for answering all my questions and for saying yes to helping our juniors. Thank you very much for calling me, first of all, and anytime I would be available for any junior, all the time. किसी को भी हेल्प चाहिए, of course I am here. और इसके बाद भी अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, I would definitely say yes, busy or not busy. Definitely, we have our comment section open. अगर किसी को कोई personalized question है, या फिर you think कि ये सारी जो आपकी journey होती है from your result to selection of your बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं एज सीनियर्स, या हम अपना एक्सपीरियंस उससे शेयर कर सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं. वी कैन हैव अनदर वीडियो एज वेल समटाइम्स इफ़ वी थिंक द क्वेश्चंस आर नेसेसरी. दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ AI for You. Allah Hafiz.